Good evening, ladies and gentlemen. I, CS Pooja Shukla, welcome you all to the 18th episode of Talk on my Facebook page. And today, in this episode, that is 18th episode, we have with us CS Rohit Prakash Preet. CS Rohit is a practicing company secretary. So, welcome, Rohit. CS Rohit is a practicing company secretary and an associate member of the Institute of Company Secretaries of India. He mainly looks into company secretarial matters, advisory services, business consultancy, and labor laws related matters. He has given his services to the Ranchi chapter of the ICSI as its chairman in the year 2019-20, and that too in a very young age. Presently, he is member of the managing committee of the Institute of Company Secretaries of India Ranchi chapter, and he is regular speaker on startups and setting of businesses, and he is also associated with Innovation Lab of Jharkhand, which has been doing great job for encouraging the startup business in the state. He is also founder of website refertask.com, a platform connecting people with profession or and professionals. And today, CS Rohit is here for speaking and expressing his views on a very important and pertinent topic, and that topic is from area in which he holds specialization, that is startup process and opportunities. So welcome once again, Rohit, to our show. And now this show is yours. So I request you to start your talk, and I will join you back in the question answer session. So now show is yours. So over to you, Rohit. Okay. Good evening to all the viewers. Special thanks to Pooja ma'am for giving me opportunity to speak something about startup and their process. आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो आई थिंक हमारे एकेडमिक करिकुलम में है नहीं, बट फिर भी हम इसको एक लेमन के भाषा में, लेमन के शब्दों में इसको समझने की कोशिश करेंगे। स्टार्टअप किसको कहेंगे, स्टार्टअप का रिकॉग्निशन हमें कैसे मिलेगा, अगर हमारे माइंड में कुछ आइडियाज हैं तो उस आइडियाज को ग्राउंड लेवल तक कैसे लाया जा सके, और भी बहुत सारी क्वेरीज होती है स्टार्टअप से रिलेटेड। तो स्टार्टअप को समझने के लिए सबसे पहला बेसिक चीज समझना होगा, वो है स्टार्टअप। स्टार्टअप का मीनिंग क्या है? स्टार्टअप मीन्स न्यूली बिजनेस एंटिटी। Firstly, startup means a newly business entity, usually supported by, started by one or group of individuals. It may be one person, it may be group of individuals, but ये दूसरे बिजनेस से कैसे डिफरेंशिएट करता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी बिजनेस स्टार्टअप तो हो नहीं सकता, तो ये दूसरे बिजनेस से कैसे डिफरेंशिएट करता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानने का यही है इसमें। तो जब भी स्टार्टअप का बात करेंगे, स्टार्टअप की बात करेंगे, तो एक चीज समझ में आना चाहिए कि वैसी एंटिटी दैट वर्किंग टुवर्ड्स इनोवेशन, दैट वर्किंग टुवर्ड्स डेवलपमेंट, दैट वर्किंग टुवर्ड्स इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज और प्रोसेसेस। That means कि any entity who is working toward innovation, innovation means creation of new product, development of new product और services, या improvement, that means कि existing product को अगर हम improve कर रहे हैं, existing product को हम अगर उसमें कुछ development करके market में ला रहे हैं, that is also part of the startup। तो अगर हम इस चीज को डिफ्रेंशिएट करना सीख गए तो हम गवर्नमेंट की बनाई हुई अपॉर्चुनिटी जिसमें हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, उस चीजों को हम ले सकते हैं। बट कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जो बिजनेस कर रहे हैं बट वो स्टार्टअप में अपने आप को रजिस्टर नहीं करते हैं। रीजन बिहाइंड दिस इज they are not aware about the policies of the government, they are not aware about the benefits given to the startups। so हम लोग आज एकदम लेमैन, एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे कि कोई भी स्टार्टअप काम करती है तो बेसिक उसका उसके पीछे सबसे बेसिक चीज कहाँ से शुरू होता है, कैसे हम शुरू करेंगे कोई स्टार्टअप को।
लेकिन हमें उस दूसरे बिजनेस से एक सिमिलर बिजनेस से हमें अलग होना पड़ेगा। दैट्स कॉल्ड द कीवर्ड इज इनोवेशन। जब हम बात करेंगे स्टार्टअप की तो यहाँ पे कीवर्ड हमें कीवर्ड पकड़ के रखना है कि इनोवेशन होना जरूरी है, या आपका बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो स्केलेबल हो, जिसको जहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करा जा सके। That means the business either develops a new product, the business either develops a new services or redevelop a current product or services into a something better form. That is the startup. इससे भी आसान भाषा में अगर समझें स्टार्टअप को, तो हम ऐसे समझेंगे कि स्टार्टअप को बेसिकली मेरे दिमाग में एक कुछ आइडिया है जो कि दूसरे को नहीं पता। मुझे पता है कि मुझे उस तरह किसी तरह से लॉन्च करना है, क्या करना है, कैसे उसको मार्केटाइज करना है। मेरे दिमाग में आइडिया है, मैं सोच रहा हूँ उसको करने का। दैट मीन्स कि जो आप सोच रहे हैं वो सीक्रेट है आपका। वो सीक्रेट मीन्स जो लोगों को पता ही नहीं है कि वो प्रोडक्ट भी हो सकता है। उनको पता ही नहीं है कि अगर ये मार्केट में आएगा तो मेरे लाइफ को कैसे वो बेटर करेगा। आपको भी नहीं पता कि इस चीज का डिमांड कितना है, अगर आपने मार्केट रिसर्च, मार्केट एनालिसिस नहीं किया है तो इस चीजों के जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं ओयो रूम्स। ओयो रूम्स के आने के पहले ये हमें बिल्कुल भी पता नहीं था। ओयो रूम्स इंडिया में आने, बाकी तो दूसरे कंट्रीज में सिमिलर स्टार्टअप्स हैं। ओयो इंडिया में आने से पहले हमें ये नहीं पता था कि हम दूसरे की प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट करके उसको रेंट पे लगा के हम खुद का अर्निंग कर सकते हैं। दैट मीन्स कि लोग जहाँ पे एक होटल और हॉस्पिटैलिटी का जो बिजनेस है, लोग वहां पे लगे हुए प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी खरीदने का। लेकिन ओयो रूम्स ने क्या करा, ओयो रूम्स ने करा कि दूसरे के प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया बाय रीडेवलपिंग द रूम्स, द क्रिएशन, द एटमॉस्फेयर एंड ऑल। तो उससे पहले कोई सारे लोग लगे हुए थे प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी खरीद रहे थे और पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ बिजनेस हो। दैट मीन्स कि वो एक आइडिया है जिसको आपने सामने रखा और उसको आपने ग्रैब किया, उस मार्केट को ग्रैब किया आपने जहां पे अपॉर्चुनिटीज हैं। तो इसको समझने के लिए कि स्टार्टअप बेसिकली हम स्टार्टअप में बिजनेस तो शुरू कर दिए, उसके बेनिफिट्स लेने के लिए मुझे क्या क्या करने होंगे। सबसे पहले कंडीशंस इसमें आपको 5 एकदम फुलफिल करने होंगे, तभी आप स्टार्टअप का बेनिफिट ले सकते हैं। पहला कंडीशन इज यू मस्ट बी अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, और it may be registered as a limited liability partnership, or it may be in the form of registered partnership firm, not partnership. It must be a registered partnership firm. Then you can get recognition as a startup. It is a prime basic thing, एक foundation है जो आपको बनाना ही पड़ेगा। बहुत लोग सोचते हैं कंपनी बनाने में बहुत खर्च आएंगे, ये वैसा कुछ नहीं। आज की डेट में इतना प्रोसेस इतना इजी हो गया है और कॉस्ट भी इतने कम लगते हैं, तो यू कैन क्रिएट अ कंपनी। आफ्टर दैट एक और इसमें साथ साथ कंडीशन हम लोग चलेंगे, 5 कंडीशंस को लेके चलेंगे। सेकंड कंडीशन इज कि आपका एनुअल टर्नओवर जो होगा वो पहले 25 करोड़ का लिमिट फिक्स किया था गवर्नमेंट ने, उसके बाद ये लिमिट को बढ़ा के 100 करोड़ कर दिया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप गवर्नमेंट का बेनिफिट्स को उठा सके। तो सेकंड क्राइटेरिया इज द एनुअल टर्नओवर ऑफ दिस बिजनेस एंटिटीज शुड नॉट एक्सीड 100 करोड़, एंड the third point is this should have been existence for up to 10 years from the date of its incorporation। means अगर कोई पहले की कंपनी रजिस्टर्ड है और उसमें अगर आप स्टार्टअप बिजनेस करें, दैट इज ऑल्सो एंटरटेनेबल, आपको बेनिफिट्स वहां पे भी मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज जो हमने स्टार्टिंग में बात करा, सच एंटिटी मस्ट बी वर्किंग टुवर्ड्स इनोवेशन, डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज और प्रोसेसेस। दैट मीन्स कि आपको इनोवेशन या डेवलपमेंट कर रहे हो प्रोडक्ट का, या सर्विसेज बना रहे हो कुछ, या सर्विसेज को इंप्रूव करके मार्केट में ला रहे हो, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इनोवेशन। तो यहाँ पे आप स्टार्टअप में रिकॉग्नाइज्ड होने के लिए एलिजिबल हो। नेक्स्ट पॉइंट इज कि कंपनी कैन नॉट बी वन that has been recently been formed by splitting up an existing business or entity। that means कि पहले से कोई कंपनी चल रही थी, मैंने उसको स्प्लिट किया और स्प्लिट करके एक नया फॉर्म बनाया और उस पर मैंने बिजनेस करना स्टार्ट किया एज ए स्टार्टअप। तो आप वहां एलिजिबिलिटी से बाहर हो जाते हो, आप एलिजिबल नहीं होगे वहां पे। यू मस्ट बी अ न्यू एंटिटी, सेपरेट एंटिटी, और इवन दो आप पहले इनकॉर्पोरेट हुए उससे कोई मतलब नहीं है, 10 साल के अंदर की कंपनी होनी चाहिए आप, और आप बेनिफिट ले सकते हो स्टार्टअप का। अब स्टार्टअप बेनिफिट दैट इज द पार्ट ऑफ द स्टार्टअप प्रोसेस। इस प्रोसेस में सबसे पहले स्टार्टअप रिकॉग्निशन लेने के लिए मुझे तो कंडीशन समझ में आया
आप लोगों को भी आ रहा होगा आई थिंक। तो स्टार्टअप रिकॉग्निशन लेने के लिए हमें 2 स्टेजों से गुजरना पड़ता है, एक DIPP रजिस्ट्रेशन एंड सेकंड इज रिकॉग्निशन फ्रॉम IMB। देयर आर 2 पॉइंट्स। जब आप स्टार्टअप इंडिया पोर्टल में जाते हो तो देयर आर 2 पॉइंट्स टू बी कंप्लाइड विद। फर्स्ट इज DIPP रजिस्ट्रेशन एंड सेकंड इज IMB रजिस्टर। DIPP मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। DIPP stands for Department of Industrial Policy and Promotion. Second is IMB, that is Inter-Ministerial Board. जैसे ही आपने प्राइवेट लिमिटेड या LLP या पार्टनरशिप आपने इनकॉर्पोरेट करा, यू हैव टू गो विद द स्टार्टअप इंडिया पोर्टल, you have to register everything, you have to feed the basic detail. Apart from that, you have to fill certain other thing like what are the problem this startup is solving, what are the uniqueness of the startup, how you are creating employment, how if you have any videos, websites or any other thing you can upload to the portal. Thereafter, after evaluation, a DIPP registration number has been generated in 2 or 3 days, जहाँ पे आपको DIPP रजिस्ट्रेशन मिलता है। उस DIPP रजिस्ट्रेशन से आप कुछ हद तक बेनिफिट उठा सकते हो, लेकिन टैक्स बेनिफिट उठाने के लिए आपको IMB का रजिस्ट्रेशन, दैट इज इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड से रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी होगा। DIPP रजिस्ट्रेशन जब करते हैं हम लोग तो उसमें बेसिक चीज डिटेल भर के और आपके यूनिकनेस को बता के कि कंपनी कैसे यूनिक है और आप DIPP रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। बट टैक्स बेनिफिट लेने के लिए आपको IMB से अप्रूव्ड होना पड़ता है, दैट इज इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड। ये इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड क्या होता है? जब आप DIPP क्रॉस कर लेते हो, 1 स्टेज ऑफ रजिस्ट्रेशन क्रॉस कर लेते हो, तो सेकंड स्टेज में IMB रजिस्ट्रेशन होता है। इस IMB में फंडा ये है, यू हैव टू पिच बिफोर द गवर्नमेंट, यू हैव टू पिच बिफोर द गवर्नमेंट। आपको 2 मिनट का एक वीडियो बनाना होगा जिसमें आपको अपने बिजनेस के बारे में गवर्नमेंट को बताने होंगे कि हाउ योर बिजनेस इज स्केलेबल, हाउ योर बिजनेस क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, हाउ योर बिजनेस इज गेटिंग मार्केट। तो इन सारी चीजों को वीडियो के फॉर्म में, बस 2 मिनट का वीडियो होना चाहिए मैक्सिमम लेंथ, और उसको अपलोड करना होता है। देन एक और इवोल्यूशन होता है सेपरेट टीम के द्वारा स्टार्टअप इंडिया का, और उस टीम के इवेल्युएशन के बाद आपको एक स्टार्टअप रिकॉग्निशन मिलता है, स्टार्टअप का एक सर्टिफिकेट मिलता है, तब जाके आप टैक्स बेनिफिट्स भी उसका उठा सकते हो। तो किसी भी थोड़ा सा इस लाइन से, अगर लाइन को ऐसे समझे कि किसी भी बिजनेस डायरेक्शन को ले जाने के लिए एक मेथड होता है 1 to N एंड सेकंड मेथड होता है 0 to 1। 1 to N का मतलब क्या हो गया कि जैसे मुझे एक बिजनेस के बारे में सब कुछ पता है। फॉर एग्जांपल लेते हैं हम लोग कोक मैन्युफैक्चरिंग, आई नो अबाउट ऑल दिस थिंग, प्रोसेस पता, मार्केट पता, मार्केट कैपिटलाइजेशन पता, कितने लोग इसको यूज करते हैं ये पता, तो हम इसमें उतरते हैं। दैट इज वो बिजनेस 1 to N में आते हैं कि मुझे 1 मतलब एक बेस मिल चुका है, अब हम इन्फिनिटी की ओर जा रहे हैं, मार्केट की ओर जा रहे हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन की ओर जा रहे हैं। एंड जो स्टार्टअप होते हैं वो 1 से स्टार्ट नहीं करते, वो 0 से स्टार्ट करते हैं, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच। दैट मीन्स यू डोंट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट द मार्केट, you don't know about flow of market, you don't know about the process, you have only idea। बट आप सक्सेस कब होते हो? जब उस आइडिया को ग्राउंड लेवल तक लाके मार्केट तक पहुंच जाते हो। दैट मीन्स कि ये एक सिचुएशन बनता है, अगर आपका प्रोडक्ट और सर्विस यूनिक होगा तो ये मोनोपोली भी क्रिएट कर सकता है। लेकिन हम लोग को तो बचपन से पढ़ाया गया है कि मोनोपोली क्या होता है, मोनोपोली मार्केट को खराब करता है। बट एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए ओनर ऑफ द कंपनी, हमें क्या चाहिए? मोनोपोली। जब तक मोनोपोली हम नहीं क्रिएट करेंगे, यूनिकनेस मेरे में नहीं होगा, हम सिंगल सर्विस देने वाले नहीं होंगे उस कैटेगरी के, तो हम उस तरह के स्केलेबल मोड में नहीं जा सकते हैं। गूगल इसका जीता जागता एग्जांपल है, जहां पे गूगल का कोई कॉम्पिटिटर नहीं, दैट ये तो मोनोपोली ही हुआ। बट बचपन से हमने पढ़ा, यही पढ़ा है कि मोनोपोली is bad for the market, but on the point of view of entrepreneur, on the point of view of owner promoter, ये सही है क्योंकि उसमें ज्यादा प्रॉफिट हम ले सकते हैं। 0 to 1 की तरफ जाने के लिए, दैट मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच टू 1, लेवल 1, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होनी चाहिए बिजनेस में, ऐसे ही कोई 0 to 1 में नहीं पहुंच जाता। 0 to 1 में पहुंचने के लिए हमें
कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करने होते, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को फॉलो करने होते, अपने आप में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बनाना होता है, अपने बिजनेस का ब्रांड बिल्ड करना होता है, वो कैसे करें? तो दैट मीन्स कि आई हैव अ प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी लाइक टीएम, मतलब आपकी बिजनेस के पास एक प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी तो जरूर होनी चाहिए। बेसिक अगर आप पेटेंट कॉपीराइट से रिलेट नहीं कर रहे हो उसको, तो एटलीस्ट ट्रेडमार्क तो होना ही चाहिए जो आपको किसी दूसरे बिजनेस से अलग बताए, दैट इज डिफरेंशिएट फ्रॉम अदर बिजनेस। तो देयर मस्ट बी अ प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी यू हैव। बेस्ट एग्जांपल इसमें देना चाहूंगा लाइक अमेजॉन, जिन्होंने बुक से स्टार्ट करा, बुक सेलिंग से स्टार्ट करा, जब लोग सोच भी नहीं पाते थे कि क्या हम बुक ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं या मुझे स्टोर में जाके पता करना होगा कि मुझे जो बुक चाहिए वो है या नहीं है। लेकिन अमेजोन ने जब स्टार्ट करा तो उन्होंने बुक्स का मतलब हजारों नहीं लाखों बुक्स उन्होंने पोस्ट कर दिए वेबसाइट पर। तो लोगों को लगा कि ना, अब तो मुझे जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं से परचेज कर सकता हूँ जो भी। तो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। अमेजोन जब आए वो अपने टीएम अपने ब्रांड बिल्डिंग के साथ आए। दूसरा होता है नेटवर्क इफेक्ट। नेटवर्क इफेक्ट मीन्स व्हाट, कि हम अपने आपके प्रोडक्ट को जब कोई अच्छा कहेगा तो वो दूसरे को भी बताएगा कि ये प्रोडक्ट अच्छा है। फॉर एग्जांपल जब फेसबुक आया था तो लोगों के पास फेसबुक से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जैसे जैसे उसके फीचर्स को लोगों ने समझा और एक दूसरे से कनेक्शन नेटवर्किंग बढ़ानी चाहिए, तो वहां पे वो इमर्ज होता गया, बढ़ता गया बढ़ता गया। बट आज के दिन कोई दूसरा सिमिलर वेबसाइट लाके कोशिश भी करे तो वो नहीं कर सकता है, क्योंकि उन्होंने 0 से 1 तक गया। अब कोई 1 उसका उसका कॉपी करके कोई बनाना चाहे तो वो 0 से 1 तक का मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाता है। थर्ड होता है इकोनॉमिक ऑफ स्केल। आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कोई लिमिट नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए भी कोई लिमिट नहीं होना चाहिए। मतलब इकोनॉमिक ऑफ स्केल मीन्स कि जब हम एक लेवल तक जाए वहां पे मैं स्टॉप ना हो जाऊं, मेरा बिजनेस वहां पे स्टॉप ना हो जाए, मेरा बिजनेस चलता जाए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम प्रिंटेड बुक का एग्जाम्पल लेते हैं और ई बुक का एग्जाम्पल लेते हैं, प्रिंटेड बुक का लिमिट वहीं तक एग्जॉस्ट कर जाता है जहां तक वो प्रिंट हुआ है। जैसे मैंने 50,000 कॉपी अगर प्रिंट करा है तो मैं 50,000 कॉपी ही बेच सकूंगा, लेकिन ई बुक में वैसा नहीं है। ई बुक में आप कितना भी बुक सेल कर सकते हो। तो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द इकोनॉमिक ऑफ स्केल। अगर आप प्रिंटेड बुक पब्लिश कर रहे हो तो आप क्यों ना उसको ई बुक में भी कन्वर्ट करो। नेक्स्ट इज ब्रांडिंग। ऑब्वियसली जो हमने डिस्कस करा, ब्रांडिंग इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी स्टार्टअप। फॉर एग्जाम्पल यूनिकनेस का बात करें तो फास्ट ट्रैक ने यूथ को टारगेट करा, यूथ को टारगेट करा और यूथ के लिए ही बनाया उस चीज को, तो लोग आजकल उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। दैट इज द ब्रांडिंग। तो सबसे पहले फॉर एक और एग्जांपल देता हूं। अमेरिका में 1980 में टैक्स फाइलिंग को लेके, मतलब इनकम टैक्स फाइलिंग को लेके सबसे पहला एक वेबसाइट और सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया। ये वेबसाइट और सॉफ्टवेयर ऐसा है जो कि आपके घर बैठे आपके कंप्यूटर से आपके मोबाइल से आप टैक्स पे कर सकते हो। तो उसको मार्केट रिसर्च पे लाया गया कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम उस सॉफ्टवेयर से लोग इंटरेस्टेड होंगे कि वो पेपर वर्क छोड़ के ऑनलाइन ही टैक्स पेमेंट इतना फेथ होगा। तो इस मार्केट रिसर्च करने के बाद पता चला कि नहीं, पब्लिक चाहते हैं कि वो पेपरलेस हो, पब्लिक चाहते हैं कि उन्हें डिपार्टमेंट विजिट ना करना पड़े। तो ये सॉफ्टवेयर सक्सेस हुआ। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि आपके जो माइंड में आपके पास जो आइडियाज हैं उसको आप प्रेजेंट करो ग्राउंड लेवल पे, एनालिसिस करो, मार्केट रिसर्च करो, ताकि पता चले कि हाँ इस प्रोडक्ट का डिमांड कितना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसमें कि स्टार्टअप में बेनिफिट्स क्या होंगे। मैंने तो कंपनी बना ली, मैंने तो सारा फॉर्मेलिटीज पूरा कर लिया, मैंने डीआईपीपी रजिस्ट्रेशन और आईएमबी से भी रजिस्ट्रेशन ले लिया, बट कंडीशन इज दैट कि अब मुझे इसमें बेनिफिट्स क्या मिलेंगे। तो सबसे पहला जो कंपनी लॉ जानते होंगे, उन्हें पता होगा कि कंपनी में आप डिपॉजिट्स नहीं ले सकते हो। स्टार्टअप में बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, लेकिन गिने चुने बेनिफिट्स ही सब जानते हैं। तो हम 8-10 पॉइंट मैं बताना चाहता हूं कि जिसमें आप बेनिफिट्स ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टअप में कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डिपॉजिट एक्सेप्ट करना इज नॉट अलाउड, मतलब आप पब्लिक से पैसा नहीं ले सकते हो। लेकिन ये लिमिट को स्टार्टअप्स के लिए एग्जेम्प्ट किया हुआ है। दैट मींस यू कैन टेक मनी फ्रॉम द पब्लिक, बट आपको स्टार्टअप होना पड़ेगा, डीआईपीपी और आईएमपी दोनों लेना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए लिमिट फिक्स कर दिया कि आप नेटवर्थ का 35% ही आप टोटल फॉर्म में एक्सेप्ट कर सकते हो डिपॉजिट।
बाकी कंपनियों का अलाउड नहीं है, बाकी प्राइवेट कंपनियों का अलाउड नहीं है, लेकिन आपकी कंपनी प्राइवेट होने के बावजूद अगर आप स्टार्टअप में रिकॉग्नाइज्ड हो तो यू कैन टेक मनी फ्रॉम द आउटसाइडर्स. Deposit, that is called as deposit. Second, startups को sweat equity shares, sweat equity shares और employee stock option scheme, वहां पे आप promoter को भी stock option scheme दे सकते हो employees. जैसे it is a form of issue of shares. जो लोग मतलब टेक्निकल नहीं जानते उन लोगों के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि employee stock option एक तरह से रिवॉर्ड के फॉर्म में शेयर दिया जाता है टू द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी. तो यहाँ पे प्रोमोटर को भी एज अ रिवॉर्ड के तौर पे आप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन इश्यू कर सकते हो. बाकी कंपनी में प्रोमोटर को अलाउड नहीं, ओनली एम्प्लॉय को अलाउड है. उसी तरह स्वेट इक्विटी में भी कुछ छूट है. एनुअल रिटर्न्स, जो भी कंपनीज के एनुअल रिटर्न होते हैं वहां पे एनुअल रिटर्न सेल्फ सर्टिफाई वो डायरेक्टर कर सकते हैं खुद. इन्हें कोई प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी या प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये सबसे बड़ा छूट दिया हुआ है. बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करने की छूट दी हुई है. जैसे बाकी कंपनियों की 4 बोर्ड मीटिंग करनी होती है, आप स्टार्टअप हो, आपको 2 बोर्ड मीटिंग साल में 6 मंथ्स पे करनी होती है. दैट इज वेल एंड गुड, अलाउड. देयर आफ्टर मेजर बेनिफिट की अगर आप कोई इंडस्ट्री से गवर्न करते हो, दैट मीन्स की कुछ इंडस्ट्री आपने सेटअप करा जहां लेबर लॉज की कंप्लायंस बहुत है. सबसे इंडिया में सबसे हेक्टिक कंप्लायंस इज द लेबर लॉ कंप्लायंस. उस लेबर लॉ में भी अलाउ किया स्टार्टअप्स को कि 6 तरह का लेबर लॉज का कंप्लायंस वो खुद अप्रूव सेल्फ सर्टिफाई से कर सकते हो. दैट मीन्स कि आपको कोई भी सर्टिफिकेशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सेल्फ सर्टिफाइड करके वो लेबर लॉ का इन्वायरमेंट लॉ एंड 6 लेबर लॉज एंड 3 इन्वायरमेंट लॉ, बेसिकली टोटल 9 लेबर लॉज. 9 लेबर लॉज का आप सेल्फ सर्टिफाई करके अप्रूवल कंप्लायंस पे ले सकते हो. नेक्स्ट है आप आईपीआर, दैट मीन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. अगर आप लेना चाहते हो कभी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जब आप लेते हो तो उसमें 80% पेटेंट कॉस्ट, 80%, मतलब अगर आपका 2 लाख रुपया लग रहा है तो 80% 1,60,000 इज रिम्बर्स, मतलब वेव आउट, नॉट रिम्बर्स, इट इज वेव्ड आउट बाय द गवर्नमेंट. अगर आपको कोई कॉस्ट 80% कॉस्ट वहां पे माफ है आपके लिए. नेक्स्ट है कि बहुत सारे गवर्नमेंट ने अभी अभी स्कीम लाया है, पिछले 3-4 महीने पहले की बात है, जहां पे गवर्नमेंट टेंडर्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो विदाउट हैविंग एनी प्रायर एक्सपीरियंस, विदाउट हैविंग एनी टर्नओवर एक्सपीरियंस. मतलब टर्नओवर क्राइटेरिया को भी मीट करने की जरूरत नहीं है, प्रायर एक्सपीरियंस को भी मीट करने की जरूरत नहीं है. अगर आप स्टार्टअप रिकॉग्नाइज्ड हो, यू कैन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन ई टेंडर्स और टेंडर्स. नेक्स्ट इज एग्जिट अपॉर्चुनिटी इज ऑल्सो इजी. एग्जिट अपॉर्चुनिटी की बात करें तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी बाकी कंपनियों की बहुत कॉस्टली प्रोसेस है और टाइम टेकन प्रोसेस है. बट अगर कोई स्टार्टअप नहीं चल पड़ा, मतलब फेल हो गया, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ द स्टार्टअप बट इट इज नॉट द एंड ऑफ द रोड. कि फेलियर अगर हो गए बाय द वे, चांसेस है, जो कि 50% स्टार्टअप फेल हो रहे हैं. अगर स्टार्टअप फेल भी हो जाते हैं तो आपको कंपनी बंद करने के लिए गवर्नमेंट ने बोल रखा है 90 डेज के अंदर अंदर ये सारा फॉर्मेलिटीज को पूरा कर लेना है. 90 डेज के अंदर अंदर ये पूरा का पूरा वाइंड अप आप कर सकते हो. और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कोई भी लेबर इंस्पेक्टर, कोई भी फैक्ट्री इंस्पेक्टर, कोई भी इन्वायरमेंटल लॉ से रिलेटेड इंस्पेक्टर आपके प्रेमाइसेज में, आपके फैक्ट्री प्रेमाइसेज में, अगर आप प्रोडक्ट रिलेटेड बना रहे हो और आपका इंडस्ट्री या फैक्ट्री है, तो वहां पे आप इंटर नहीं कर सकता, वो प्रेमाइसेस के अंदर नहीं जा सकता अगर आपके पास डीआईपीपी और आईएमबी का रजिस्ट्रेशन है, रिकॉग्निशन है. दैट मींस यू आर अ स्टार्टअप. देन इन दैट केस कोई भी 3 साल तक, जब से आपने स्टार्टअप चालू किया है, चलाया है, तब से 3 साल तक आपके यहाँ कोई एंटर नहीं कर सकता है. तो ये सारी चीजें बेनिफिट्स में आते हैं. टोटल 11-12 पॉइंट मैंने बेनिफिट्स बताए. इसके अलावा भी 3-4 पॉइंट और होंगे जो मेरे दिमाग से मिस हो गए होंगे, लेकिन ये सारा बेनिफिट्स है. इसको आप अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख के इसको ग्रैब कर सकते हो. बहुत सारे आजकल स्टूडेंट्स 8, 9, 10th में हमारे इंडिया के सिलेबस में तो नहीं, लेकिन बाकी जगहों के, बाकी देशों के सिलेबस में 6-7 से ही स्टार्टअप पढ़ाया जाता है ताकि लोग एंटरप्रेन्योर बन सके. हमें नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना चाहिए. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू में इस सारे चीजों का स्टार्टअप कॉन्सेप्ट ही ये कि लोगों को अगर कोई आइडिया चल रहा है, तो एक चीज और, आइडिया को जब तक आप एक प्लेटफॉर्म में लेके नहीं आओगे तब तक वो पेटेंट भी नहीं हो सकता. तो अगर मेरे दिमाग में आइडिया बहुत
खुरापाती आइडिया है मेरे दिमाग में और मैं एक प्रोडक्ट बनाने वाला हूँ या एक सर्विसेज बनाने वाला हूँ या मैं ऐसा एक विंग तैयार कर दिया जो लाखों घंटों ट्रैफिक में फंसने का झमेला से मुक्ति दे देगा और मैं वो विंग लगा के उड़ के कहीं भी चले जाऊंगा। तो डेट इज ऑल्सो प्रोडक्ट, यूनिक प्रोडक्ट। तो इसको भी आप तब पेटेंट करा सकते हो जब आप उस प्रोडक्ट को मार्केट में, मतलब मार्केट में नॉट, आप जब उस प्रोडक्ट को एक बना लो तभी तो उस प्रोसेस को आप रजिस्ट्रेशन करा लो, तभी तो वो पेटेंट हो सकता है, अदरवाइज पेटेंट नहीं हो सकता। तो बिफोर एंटरिंग इनटू द स्टार्टअप आई थिंक you have to do a intensive market research for the success of startup. You have to secure intellectual property rights, that means patent, copyright or trademark. Decide about the branding, how to do branding. चूज अ को फाउंडर, बेसिकली बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होता है तो लोग अकेले ना करना चाह के दो चार लोग मिलके एक स्टार्टअप को चला रहे हैं आजकल, ताकि रेवेन्यू शेयरिंग हो सके, लॉस शेयरिंग हो सके, प्रॉफिट के साथ साथ लॉस भी शेयर हो सके और बराबर का इन्वेस्टमेंट लग सके। राइट अ बिजनेस प्लान एंड पिच बिफोर द इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर के सामने आपको पिच करना होगा, बताना होगा कि मेरा प्रोडक्ट और सर्विसेज कैसा है और इस प्रोडक्ट में आप पैसा लगा सकते हो। आजकल वेंचर कैपिटलिस्ट इज ऑल्सो अवेलेबल टू टेक पार्ट ऑफ इन योर स्टार्टअप। पिक अ वर्क प्लेस, ऑब्वियसली घर से काम होता नहीं है तो बेसिकली एक वर्क प्लेस इधर शेयरिंग बेसिस पे और किसी भी तरीके से आप उसे ले सकते हो, एस्केलेशन के लिए जा सकते हो। एंड द कैपिटल रेजिंग इज मोड की जहां पे आप कैपिटल भी रेज कर सकते हो। जब आप स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर करते हो तो वहां पे ये भी ऑप्शन दिया जाता है कि आप इंक्यूबेटर से मिल सको, एस्केलेटर से मिल सको, ताकि आपके और वेंचर कैपिटलिस्ट से भी मीट करा जा सके। तो एक प्लेटफॉर्म है स्टार्टअप इंडिया जहां पे आप इन सारे चीजों का ये कर सकते हो। नेक्स्ट एक एक स्टोरी याद आ गया तो सोच रहा शेयर कर दूं। एक स्टोरी ये है कि हेनरी फोर्ड का नाम हमने सब लोगों ने सुना है, जो अमेरिका का सबसे कामयाब लोगों में से गिना जाता है। उन्होंने गाड़ियों के को इतना सस्ता बनाया कि एक मिडिल क्लास भी उस कार को अफोर्ड कर सकता है। लेकिन अगर वही उनके दिमाग में जब ये आइडिया आया कि मुझे फोर व्हीलर बनाना है, अगर उन लोगों से उस टाइम के 1863 में वो जन्म लिए थे और 1947 में उनका डेथ हुआ था, अगर उस समय का बात करें तो लोगों से अगर पूछने जाते कि क्या आपको फोर व्हीलर चाहिए या नहीं चाहिए, तो वो बोलते नहीं नहीं भैया, हमको ना तेज दौड़ने वाला घोड़ा दे दो, उसी से मेरा काम चल जाएगा। तो वो आइडिया कभी ग्राउंड लेवल पे आता ही नहीं, वो घोड़ा ही चाहिए होता है उन लोगों को। लेकिन जैसे ही, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि लाइफ आपका कैसे इजी बना रहा है ये स्टार्टअप, लाइफ आपका कैसे इजी बना रहा है ये स्टार्टअप। तो जैसे ही लोगों को पता लगता है तो आपके प्रोडक्ट को वो खरीदते हैं और अपने लाइफ को बेहतर करते हैं। जब एफबी की जरूरत नहीं थी तो कोई यूज नहीं करता था, मतलब यूज करने के घर पे भी आके देखिए, आज हम लोग एफबी पे लाइव हैं पूजा मैम के साथ। तो जब जरूरत नहीं पड़ती है तो नहीं पड़ती है, लेकिन जब किसी चीज को लगता है कि ये मेरे लाइफ को आसान बना रहा है, लोगों से इंटरेक्ट हम आसानी से कर पा रहे, तो एफबी का यूज है। नॉट ओनली बाई फोटो शेयर करना, हम लाइव बात कर रहे हैं आप लोगों से, दैट इज द पॉइंट। जब एरोप्लेन बन रहा था उसी तरह तो किसी को ये नहीं पता था कि एरोप्लेन से जिंदगी आसान हो सकती है। आज ग्लोबल मार्केट में इमेजिन करना इम्पॉसिबल है बिना एरोप्लेन, कोई भी चीज। तो कंज्यूमर डोंट नो व्हाट दे वांट, बेसिकली कंज्यूमर दे डोंट नो आपको आपके आइडियाज को कैसे पिच करना है, कैसे मार्केटाइज करना है, मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे करना है, ये सारा डिपेंड करता है कि आप किस तरह काम करते हो। आपको कुछ पॉइंट्स को भी ध्यान रखने होंगे। आई थिंक टाइम ओवर हो रहा है, सो आई हैव टू स्टॉप। आप बोलिए, टाइम है, अगर आप और भी सुनाना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, कोई आपत्ति नहीं। नहीं, अब जाते जाते कुछ स्टोरी सुना देता हूँ ताकि लोग इनकरेज हो और स्टार्टअप में आए, स्टार्टअप बेनिफिट ले सके। जैसे कुछ स्टोरी मैंने व्हाट्सएप पे देखा था तो बड़ा अच्छा लगा, सोचा आप लोगों के सामने लाऊं। फर्स्ट स्टोरी इज की नोकिया रिफ्यूज्ड एंड्रॉयड। नोकिया ने एंड्रॉयड को रिफ्यूज कर दिया था। नोकिया एक वेल स्टैब्लिश्ड कंपनी थी। उसी तरह याहू रिफ्यूज्ड गूगल। याहू सबसे पहले प्लेटफॉर्म था सर्च इंजन, उन्होंने गूगल को रिफ्यूज कर दिया। तो इन दो चीजों में एक लेसन मिलता है कि ऑलवेज टेक द रिस्क। आप रिस्क लोगे तभी आगे बढ़ोगे। एम्ब्रेस चेंजेस, अडॉप्ट चेंजेस, एंड इफ यू रिफ्यूज टू चेंज विथ टाइम यू विल बी पेरिश। सो यू हैव टू टेक द चैलेंजेस। एंड सेकेंडली वन मोर स्टोरी, फेसबुक अक्वायर्ड व्हाट्सएप। फेसबुक ने व्हाट्सएप को अक्वायर्ड करा, फेसबुक ने इंस्टाग्राम को अक्वायर्ड करा।
उसी तरह मिंत्रा ने जुबंग को अक्वायर्ड करा और फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को अक्वायर्ड करा। अब फ्लिपकार्ट की क्या स्थिति हो गई, वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को अक्वायर्ड कर लिया। तो दैट इज द स्टोरी, किसी ना किसी को कोई अक्वायर्ड कर रहा है। तो इससे भी कुछ सीखने की चीज है। दैट मीन्स कि बिकम सो पावरफुल दैट योर कॉम्पिटिटर बिकम योर एलीज and reach the top position and then eliminate the competitions. That is the basic learning from these stories. Thank you. I think बोलने के लिए बहुत कुछ है, but बाकी questions भी अगर कुछ है तो हम लोग ले लेते हैं उसको, है ना? Questions definitely questions are there, Rohit, और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले मैं ये चाहूंगी कि सबसे पहले तो हम अपने इस पेज की तरफ से से थैंक यू टू यू कि आपने इतने सहजता से और इतनी अच्छी तरीके से स्टार्टअप्स के बारे में हमारे भी ऑडियंसेस हैं उनको बताया और कि कैसे वो शुरू कर सकते हैं और उससे जुड़ी जानकारियां जो थी वो बहुत बारीकी के साथ आपने बताई। अब मैं ये आपसे कहती हूँ रोहित कि आपने जो ये वेबसाइट बनाया है, वेबसाइट refertask.com, तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ जो हमारे दर्शक हैं आप उनको अपने इस वेबसाइट के विषय में कुछ बताएं कि ये क्या है और आपने किस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए और क्यों आपने इस वेबसाइट को बनाया है और इससे जुड़े फायदे क्या क्या हैं? Basically refertask.com is a platform like a freelancer site. अभी जब ये भी एक स्टार्टअप है हमारा, अभी रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, बट वी आर ट्राइंग टू गेट द रिकॉग्निशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो इट इज अ स्टार्टअप जहाँ पे हम प्रोफेशनल्स को और क्लाइंट्स को मिलाने का एक प्लेटफॉर्म है। दैट मीन्स कि इफ एनीवन वांट्स टू, जस्ट लाइक OLX, इफ एनीवन वांट्स टू सेल द कार, वो क्या करता है, OLX पे जाता है एंड पोस्ट करता है कि मुझे इतने रुपए में इसको सल्टा दो यार, तो लोग बायर मिलते हैं और उसको खरीद लेते हैं। उसी तरह ये एक रेफरटास्क प्लेटफॉर्म है जहां पे एक बंदा जिसको CS से अप्रोच नहीं है, तो वो डायरेक्टली उस पे जाके पोस्ट कर सकता है कि हैव टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द पीरियड ऑफ दिस दिस दिस। वहां पे बहुत सारे प्रोफेशनल्स लिस्ट होंगे ऑब्वियसली पहले से, आप उनको सेलेक्ट करके और आप काम एलोकेट कर सकते हो। आजकल सारा चीज ऑनलाइन है, तो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट शेयरिंग से लेके एवरीथिंग यू कैन डू ऑनलाइन। सो इट इज अ प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट द पीपल विद द प्रोफेशनल्स। अब हमने स्टार्टअप की बात कर ली, आपका जो वेबसाइट है उसकी भी बात कर ली, आप किस किस क्षेत्र में कार्यरत हैं, कहाँ कहाँ आप काम कर रहे हैं, किन किन एरियाज में, हमने वो सारी बात कर ली। अब मुझे लगता है कि कुछ ऐसे प्रश्न हो जो आपको आपके बचपन की ओर ले जाए। और आज आप एक सफल कंपनी सेक्रेटरी हैं, आप प्रैक्टिस में हैं और उसके साथ साथ काफी कम उम्र में आप रांची चैप्टर ऑफ ICSI के चेयरमैन भी रहे हैं, मैनेजिंग कमेटी में भी रहे हैं और आप सरकार और गैर सरकारी संस्थानों द्वारा जो आयोजित कार्यक्रम होते हैं उसमें आप वक्ता के तौर पे बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें आपकी उपस्थिति होती है। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि बचपन का रोहित और आज के रोहित पे आप क्या फर्क पाते हैं? बचपन की बात अलग होती है। बचपन जहाँ पे हमें कुछ नहीं पता होता है कि आई थिंक बिहार और झारखंड और हमारे यूपी साइड के बच्चों को बेसिकली मेंटर नहीं मिलते हैं कि लाइफ में करना क्या है आगे। उसी तरह बिहार और यूपी के बंदों का एक ही सपना होता है कि इंजीनियरिंग कर लो बेटा, मेडिकल में जाओ नहीं तो इंजीनियरिंग ही करो। घर वालों का भी ख्वाहिश होता है साइंस साइंस ले लो और इंजीनियरिंग करो। तो हमारी जर्नी बड़ा ही उल्टा पुल्टा रहा। मैंने इंटर तक साइंस से करा, साइंस से करने के बाद CS ज्वाइन करा। हमारे एक अंकल थे, उन्होंने बताया कि CS, और मुझे मैथ्स से भागना था, दूर भागना था कहीं। जब मैथ्स से दूर भागना तो कुछ भी मिले कूद पड़ो, तो कोई प्री प्लान नहीं था कि कंपनी सेक्रेटरी ही करनी है। तो जब बस मैथ्स से भागने के चक्कर में रांची आ गया मैं, और रांची आके फिर CS की पढ़ाई की, और आप जैसे मेंटर मिले मुझे जो इस लेवल तक पहुंचा पाया आप लोगों ने। तो थैंक्स टू ऑल द मेंटर। उस समय की बात एकदम मतलब कुछ सोचने लायक भी नहीं है कि उस समय मस्ती मौज क्रिकेट, उसके अलावा कुछ नहीं होता था लाइफ में। क्या करना है कुछ नहीं पता था। 11th 12th रांची आने के बाद ही जब इसमें घुस गया, तो एक तो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट,
कुछ नहीं आता जाता इंग्लिश, और वहां पे सीएस में हर चीज इंग्लिश है। तो काफी स्ट्रगलिंग रहा, बट एंड बहुत ही अच्छा रहा, और आगे भी आई थिंक अच्छा ही रहेगा। तो अभी मैं ये कहना चाहूंगी कि तमाम वो दर्शक जो अभी रोहित को इस वक्त देख रहे हैं, जैसा कि रोहित ने अभी यहाँ बताया कि वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, लेकिन ये उनकी मेहनत है और उनके प्रयास जो उन्होंने किए उसका ये फल है कि आज इनको सुनने के बाद कोई नहीं कहेगा कि ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे इस वजह से इन्हें अंग्रेजी नहीं आती है या ये अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपके समक्ष जीते जागते उदाहरण के तौर पर रोहित है कि उन्होंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की, उसके बाद जैसा कि उन्होंने कहा कि बहुत परिश्रम करना पड़ा, लेकिन भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की जो किताबें होती है वो हिंदी में उपलब्ध नहीं होती, अंग्रेजी में होती है, और मीडियम आप हिंदी मीडियम चुन सकते हैं लेकिन किताबें नहीं मिलेंगी, जिसके वजह से जो वहां के छात्र छात्राएं हैं उन्हें अंग्रेजी में ही मॉड्यूल्स को पढ़ना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि परिश्रम करने से इंसान अपने जो उसके इरादे हैं उन इरादों में कैसे कामयाब हो सकता है। और अब अ, एक प्रश्न और मैं आपसे यहाँ पे पूछती हूँ रोहित कि 5 साल के समय की अगर बात करते हैं तो अगले 5 साल में हम रोहित में और क्या बदलाव देखेंगे कि रोहित और क्या क्या करने वाले हैं? रोहित और डिग्री लेंगे, रोहित अपने प्रैक्टिस को एक्सपैंड करेंगे, एक ऑफिस की जगह 2 3 4 ऑफिस खोलेंगे, या आप क्या करने की सोच रखते हैं? अभी अभी तो हमारे प्रैक्टिस लाइन में काफी स्कोप है, जो भी मतलब जो स्टूडेंट्स अगर देख रहे हो तो सीएस में अभी काफी सारे स्कोप्स है, बट लॉकडाउन की जगह से बहुत सारे सीएस रांची में आ गए हैं वापस जॉब छोड़ के। तो अभी जॉब क्राइसिस है, बट प्रैक्टिस अपॉर्चुनिटी इज वेरी गुड। देर आर लॉट्स ऑफ एरियाज टू डू प्रैक्टिस। सो अभी आगे आने वाले सालों में आई थिंक और भी इस प्रैक्टिस को एक्सप्लोर करना ही चाहूंगा, और ज्यादा से ज्यादा इस फील्ड को मतलब किसी चीज में मैंने तो एक्सपर्टाइज वाइज ही काम करा है। जैसे हमारी अभी भी टीम है जो कि जीएसटी अलग देखती है, कंपनीज मैटर अलग देखती है, स्टार्टअप्स के लिए अलग है टीम, लेबर लॉस के लिए अलग है टीम। तो अभी भी स्पेशलाइजेशन इज देयर, बट टाइम के साथ साथ टीम को बढ़ाना, टीम को बिल्डअप करना, और ज्यादा से ज्यादा लोग जाने इस चीज के बारे में। और सीएस प्रोफेशन को कभी भी हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि सीएस प्रोफेशन को लोग ज्यादा से ज्यादा जाने। ये कंप्यूटर साइंस ना समझे इसको, सीएस इज नॉट ए कंप्यूटर साइंस। अभी भी लोग इतने सालों के बाद 1982 का ये हमारा सीएस आईसीएसआई स्टैब्लिश्ड है 1982 से, बट अभी भी सीएस को बहुत कम लोग जानते हैं और अभी भी कंप्यूटर साइंस बोलते हैं। तो चैप्टर से जुड़े रहने का मकसद ही यही है कि लोग को अवेयर करे कि ये सीएस होता क्या है। और आई थिंक एक लाइव सेशन उस पर भी करना चाहिए हम लोगों को, और स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए जहाँ पे कॉमर्स फील्ड में क्या क्या पर्टिकुलर एक्सपर्टाइज, कौन कौन से चीजों में जा सकते हैं, कौन कौन से स्ट्रीम ले सकते हैं, उस पे एक बार डेफिनेटली जाना चाहिए आपको भी ताकि लोग आपसे बहुत इंस्पायर्ड रहते हैं, आपसे लोग इंस्पायर्ड रहते हैं तो बेसिकली थैंक यू। तो कुछ सीखे। मैम इज ऑल्सो कंपनी सेक्रेटरी, इज ऑल्सो वेरी मच फेमस फैकल्टी, एंड लिटरेचर में भी महानता हासिल है इनके तो कुछ नहीं, कमी नहीं है हमारे सीएस फील्ड में, एक से एक छुपे रुस्तम है। तो ऑब्वियसली लोगों को भी आपसे मोटिवेट होना चाहिए। थैंक यू सो मच रोहित। और निश्चित तौर पे आपने जो कहा है मैं उसको ध्यान में रखते हुए मैं एक सेशन के लिए जरूर बात करूंगी जहां मैं चैप्टर से जुड़े या इंस्टीट्यूट से जुड़े किसी व्यक्ति को जो कि सारी जानकारियां ऑफिशियली देने के लिए यहाँ तैयार हो, उसको बुलाकर एक सेशन हम जरूर करेंगे। मेरा वादा रहा है आपसे। या आपने बहुत अच्छी बात कही और इस पे एक होना चाहिए, एक सेशन होना चाहिए। आप डेफिनेटली वस्तुतः होनी आप चाहिए। झारखंड के रहने वाले हैं या बिहार के? मैं बिहार औरंगाबाद का रहने वाला हूँ। 2008 में पहली बार रांची आया और यहीं का होके रह गया। अब यहाँ पे सारी फैमिली यहीं पे है, कोई बिहार में नहीं रहता, सब रांची में ही रहता है। तो वी आर वेल सेटल्ड इन रांची राइट नाउ। सो 2008 से यहीं पे हूँ। अब आप ये बताइए कि झारखंड में आपको अगर 3 चीजें कोई बदलनी हो तो आप क्या बदलना पसंद करेंगे जिससे कि ये राज्य और समृद्ध हो जाए?
यहाँ पे सबसे पहले एडुकेशन इज इम्पोर्टेंट. बेसिकली majority of people are belonging from tribal class, तो education is must because यहाँ पे education नहीं होने के कारण ही लोगों को पता नहीं है कि करना क्या है. यहाँ पे टैलेंट्स की कमी नहीं है. यहाँ पे अगर स्पोर्ट्स से लेके किसी भी चीज में देखा जाए तो हमारे बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे लोग निकलते हैं. तो सबसे पहला तो एडुकेशन को ठीक करना चाहूंगा कि एडुकेशन व्यवस्था. दूसरा, सेकंड कि यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस बहुत है. आई थिंक गवर्नमेंट ने पता नहीं इसके पीछे क्या लॉजिक है या ध्यान नहीं दिया गवर्नमेंट ने. टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए झारखंड इज बेस्ट प्लेस. तो यहाँ पे टूर्स एंड टूरिज्म से रिलेटेड यहाँ पे होनी चाहिए कुछ डेवलपमेंट. एंड थर्ड इज यहाँ पे बेसिक बेसिक थिंग है कि यहाँ पे जैसे गांव में अभी भी गांव में चले जाते हैं तो वो शहर से अभी भी कटे हुए हैं. मतलब कुछ जगह तो ऐसे हैं कि अब जहाँ पे बिजली तक नहीं है. ऑब्वियसली बिहार में भी ऐसे हैं और यूपी में भी ऐसे ही जगह हैं, बट झारखंड की कुछ जो संस्कृति हम लोग को शायद पता भी नहीं है शहर में रहने वाले लोगों को. तो वहाँ के संस्कृति से भी रूबरू होना चाहिए. वहाँ पे एक बार कनेक्शन, किसी भी तरह से एक कनेक्शन होना चाहिए उन लोगों को कि जहाँ पे उनके बच्चे भी शहर आके पढ़ सके. उन लोग को पता ही नहीं है कि बेसिकली शहर में है क्या चीज. तो ये तीन चीज है जो बेसिकली डेवलप करने की जरूरत है झारखंड. जी, बहुत बहुत अच्छा आपने सुझाव दिया है. और अब अब अगर हम बात करते हैं तो आप बिहार से भी जुड़े हैं, झारखंड से भी जुड़े हैं. तो और बचपन आपका बिहार में गुजरा या झारखंड में? बिहार में. बिहार. तो आप औरंगाबाद से आते हैं, तो मुझे यकीन है कि वहाँ की भाषा तो आपको बोलनी आती होगी थोड़ी बहुत. एकदम एकदम. तो वहाँ के लोग, चूंकि ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, और अगर कुछ लोग लाइव में देखते हैं, और लाइव से ज्यादा वीडियो लोग तब देखते हैं जब ये ऑफलाइन में पोस्ट होता है, और मतलब जब लाइव एंड होता है तो फिर जब ये पोस्ट होता है तो फिर इसका स्प्रेड होता है. तो वहां के जो लोग आपको इस वक्त देख रहे हो, तो वही की भाषा में आप उन्हें कुछ संदेश दें यहाँ से, या आप उनसे क्या कहना चाहते हैं इतने सालों बाद जब आप उनसे मुखातिब हो रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे उनको? हम लोग का वहाँ का भाषा बेसिकली मगही है. और हाँ. मगही का टोन बहुत खड़ी टोन होता है और सुनने में शायद बहुत लोगों को पसंद भी नहीं आता है. नहीं, तो उससे भाषा, हर भाषा मीठी होती है. लेकिन हाँ, मतलब थोड़ी कड़ी होती है भाषा. लाइक अगर हम आपको कुछ बताना चाहें तो ये कुछ बोलना चाहें आपसे, जैसे हम आपका अपने के प्रणाम करी थी. आप जो भी आप लोग व्यूअर देख रहे हैं, दैट मीन्स कि जो भी देखे थी सबको प्रणाम. और अपने बच्चों को, वहाँ के लोग बाहर आके नहीं पढ़ते तो उनके लिए भी एक संदेश है कि आप उन बच्चों को बाहर भेजी और पढ़ाई, अच्छा अच्छा शिक्षा दी. और बस इतना ही. क्या लॉकडाउन में क्या करें ये भी बता दें. क्या क्या लॉकडाउन में कैसे अपना ध्यान रखें? लॉकडाउन में कैसे अपना ध्यान रखें? लॉकडाउन तो आई थिंक रांची में तो कोई लॉकडाउन है नहीं. बेसिकली सब धड़ल्ले से घूम रहे हैं. और बिहार में सच में औरंगाबाद की स्थिति बहुत खराब हो गई थी बीच में, जहाँ पे हमारे भी कुछ रिलेटिव कोरोना पॉजिटिव पाए गए. रिलेटिव ना बोल के मोहल्ले के लोग बहुत सारे जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए. वहाँ के अच्छे अच्छे समाज सेवी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए. तो वहाँ के विधायक जी भी कोरोना पॉजिटिव थे. तो बहुत खराब स्थिति थी वहाँ की. तो अभी भी शायद 31 तारीख तक वहाँ लॉकडाउन है, जो कि फिर से बढ़ाने की उम्मीद है, क्योंकि वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ही लचर हो गई है आज के दिनों में. बेड्स की सुविधा नहीं है. सामान्य नहीं है. सामान्य बिल्कुल भी नहीं है. और कल ही का एक न्यूज है, एक हमारे फ्रेंड ने व्हाट्सएप पे पोस्ट किया कि मैं एम्स पटना में हूँ और उनके कोई रिलेटिव थे जो कि हार्ट के पेशेंट थे और कोई एडमिट लेने को तैयार नहीं था उनको. वो बेचारा बाहर खड़ा रहा स्ट्रेचर पे लेटा के, और सब लोगों को ग्रुप में मैसेज किया कि कोई कॉन्टैक्ट है तो बताओ, एम्स में मुझे यहाँ पे एडमिट कराना है. बट
कोई भी ऐसे लोग नहीं मिले, और मिले भी तो वो लोगों ने सीधे हाथ खड़ा कर दिया कि नहीं, यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है। तो लास्ट में उनका डेथ हो गया। तो दैट इज वेरी शॉकिंग न्यूज कि इतना खराब वहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो कि बहुत सुधारने की जरूरत है, जो सब भगवान भरोसे चल रहा है। तो लोग बेसिकली अपने आप के ऊपर ध्यान दें, योगा करें और जो भी इम्यूनिटी बूस्ट करने की चीजें आप करें, टाइम दे एक्सरसाइज में। अब तो मैं भी शुरू कर दिया हूँ, पहले तो जिम में जाता था, बॉडी नहीं बना फिलहाल तो घर में ही योगा अभ्यास ही काफी है, वो करे, फिट रहे। अच्छा। रोहित, आज बहुत सार्थक चर्चा हुई और आपने बहुत जो महत्वपूर्ण एक विषय था, उसके विषय पे जो आपने यहाँ पे आज अपनी बातें रखी, एंड यू एक्सप्लेन दैट टॉपिक वेरी वेल। एंड जितनी भी मुझे लगता है कि आपने चीजों को इस तरीके से कवर किया कि क्वेश्चंस जो है वो व्यूअर्स और लिसनर्स को वो पूरी तरीके से बातें समझ में आई, इसलिए डाउट से रिलेटेड उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, नहीं तो फिर देखा जाता है कि वो क्वेश्चंस आने शुरू होते हैं। तो ये बहुत सार्थक चर्चा रही और बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। और अब मैं चाहूंगी कि हमारे प्रोफेशन से जुड़े हुए जो विद्यार्थी हैं या हमारे मेंबर्स जो हैं, वो इस लॉकडाउन की कंडीशन में मेरी जब बात होती है उनसे, तो कई दफे वो कहते हैं कि बहुत स्ट्रेस हो रहा है या बहुत परेशानी में है, नौकरी को लेकर तनाव है, पढ़ाई को लेकर तनाव है, परीक्षाएं कब होंगी इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है ठीक से, निश्चितता मतलब चीजें निश्चित नहीं है, देयर इज नो सर्टेनिटी रिगार्डिंग द थिंग्स। तो मैं चाहूंगी कि आप उनके लिए कोई संदेश दें यहाँ से। देखिए, हमारे आई थिंक सारे प्रोफेशन के लोग मेरे से सीनियर ही होंगे यहाँ पे, और उन लोगों को कुछ संदेश देने से अच्छा है कि अ, लोगों से जुड़ी बातें जो आपस में सच में ऐसा हुआ है सबके साथ, सारे लोग जो नए प्रैक्टिशनर हैं, हम लोगों का 6-7 साल हो गया, 7 साल हो गया प्रैक्टिस करते हुए, तो फिर भी जो अभी 1-2 साल के अंदर प्रैक्टिस में आए हैं, आई थिंक उन लोगों के लिए अच्छा नहीं रहा। ऑफिस का रेंट देने से लेके एम्प्लॉय सैलरी तक वो देना पड़ा, और लॉकडाउन में आई थिंक लोग पैसा को दबा रहे हैं। दैट मीन्स कि वो सोच रहे हैं कि ये फ्यूचर में काम आएगा, इकोनॉमी तक पैसा पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा हर्डल है। तो उस बीच में अपने आप को मेंटली फिट रखना एक चैलेंज है। मुझे याद है कि जब इनिशियल लॉकडाउन हुआ था तो मुझे रात में नींद नहीं आती थी, क्योंकि मुझे आदत पड़ा हुआ था ऑफिस जाने का और काम करने का। घर में 10 दिन तक तो ठीक था, खूब सोया। 11th डे से मुझे नींद आनी बंद हो गई। तो मेंटली लिटरली सबको ये परेशानी कभी ना कभी होती होगी। एक बार लाइव सेशन आईसीएसआई के साथ हमारे प्रेसिडेंट आशीष गर्ग जी और रामदेव बाबा का सेशन था। तो रामदेव बाबा से मैंने क्वेश्चन भी पूछा कि ऐसा डिप्रेशन हो रहा है, मतलब इट इज मुझे पता नहीं कि डिप्रेशन है कि क्या है। तो बट नींद नहीं आ रही है रात रात भर। तो लास्ट में मुझे बाबा का सहारा लेना पड़ा। बाबा ने बताया कि कुछ दवा बताया मुझे, तो वो खाने का सलाह दिया, लेकिन उससे भी कोई कुछ नहीं हो पाया। लास्टली मुझे ट्रीटमेंट कराना पड़ा, जब 15 दिन तक मुझे एकदम नहीं सो पाया। तो और उसके बाद समझ में आया कि एक्सरसाइज, योगा, टाइमली उठना, टाइमली सोना, जैसे ऑफिस का रूटीन आप फॉलो करते थे, वैसे ही घर में आप अगर रूटीन फॉलो करोगे, उठ के काम करो 10 से 6-7 बजे तक, और उसी वही रूटीन को अगर फॉलो करते हो तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वही है कि अगर घर में रहते हैं तो हम लोग बहुत ही कैजुअल लेते हैं चीजों को, इंगेज हो जाते हैं मोबाइल में या बच्चों में या टीवी में या किसी भी चीज में। बट ऑफिशियली ड्रेस्ड अप होके सुबह बैठना और काम करना इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। आप घर में भी हैं, अगर मान लो अभी फिर भी अभी अभी लॉकडाउन हो गया, तो इसी चीज को फॉलो करना एकमात्र उपाय है मेंटली स्ट्रेस और डिप्रेशन से बचने के लिए, और कुछ नहीं। और बेसिकली यही संदेश भी देना चाहूंगा सारे प्रोफेशंस के लोगों को, आइदर सीए, सीएस और लॉ के फील्ड के हो, तो ये चीज फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि आप योग करें, प्राणायाम करें और अच्छी-अच्छी जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें करनी आपको पसंद थी और आप नहीं कर पा रहे थे पहले, तो उन सब चीज़ों पे आप अपना वक़्त जो है वो उसका इस्तेमाल करें और इस तरीके से अवसाद से दूर रहें। रोहित, अभी तक
का जो आपका सफर रहा है कंपनी सचिव के तौर पे, तो उसको आप कैसे देखते हैं? आपको कभी मेरा ऐसा लगा क्या कि आपने साइंस जैसे विषय को जब छोड़ा, तो आपको कभी ऐसा लगा क्या कि वो आपको नहीं छोड़ना चाहिए था या आपसे कोई गलती हो गई? ऐसे ख्याल आए कभी दिमाग नहीं में? नहीं, वो तो छोड़ना ही था। वो तो बहुत ही अच्छा हुआ कि साइंस को मैंने छोड़ा, क्योंकि मेरा मैथ से दूर दूर तक नाता नहीं रहता था। वो जबरदस्ती होता है कि एक साइंस ले लिए तो पढ़ना ही है, पढ़ना ही है। तो आज के डेट में बहुत ही खुश हूँ कि जो फील्ड चूज किया और जिस हिसाब से स्ट्रगल थी स्टार्टिंग में, बट स्ट्रगल फेज हमेशा कभी भी ऑलवेज ये कैरी नहीं होता है। स्ट्रगल स्ट्रगल कभी ना कभी एंड होता ही होता है। तो स्ट्रगल एंड हुआ, और आई थिंक आज के डेट में आई एम हैप्पी कि मुझे प्रैक्टिस ही सूट करता है, और मैं इसी के लिए बना था शायद। और जैसे जैसे प्रैक्टिस में एक्सपीरियंस होता जाएगा, आई थिंक मुझे और भी खुशी मिलेगी। जब मैं 7-8 लोगों को जॉब पे रखता हूँ, तो मुझे और भी अंदर से फीलिंग आती है कि चलो मैं जॉब नौकरी करने वाला ना हो के किसी का एक नौकरी देने वाला तो बन सका। तो हमारे करिकुलम में भी इस कल के डेट में कुछ पाठ्यक्रम में चेंजेस आई हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा देख के कि बीजेपी गवर्नमेंट ने इतना अच्छा डिसीजन लिया कि ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जहां 6 क्लास से ही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की जरूरत हो। अगर कोई बच्चा नेशनल इफ नेशनल इफ एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं आप? हाँ 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 हाँ, इस नेशनल जी। एजुकेशन पॉलिसी में अगर कोई बच्चा 6 क्लास से अगर उसका इंटरेस्ट दिखता है कि वो पेंटर बनना चाहता है या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना चाहता है या कोडिंग करना चाहता है, एप्लीकेशन बनाना चाहता है, तो 6 क्लास से ही उसको प्रैक्टिकल 2-3 घंटे का ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है। तो अभी तक का जो हमारा सिलेबस था वो एक रटंत विद्या था, रात में पढ़ो सुबह एग्जाम लिखो वाला, जो कि अब बहुत ही गुड स्टेप है गवर्नमेंट का और वेलकम स्टेप है। तो ये होना ही होना चाहिए था। तो हम कह सकते हैं कि साक्षर से शिक्षित और शिक्षित से संतुष्ट बनाने की तरफ ये कदम सही बात, एग्जैक्टली exactly. है। और कोई संदेश रोहित आप देना चाहेंगे हमारे इस मंच से यहाँ? जाते जाते बस यही कहना चाहूंगा कि रेस्पेक्ट एवरीवन, इन्वेस्ट योर टाइम वाइजली, कीप वर्किंग हार्ड, कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग, योर टाइम विल डेफिनेटली कम एंड नेवर गिव अप। थैंक यू। तो थैंक यू वेरी मच रोहित कि आपने समय निकाला हमारे इस पेज के लिए, और आप यहाँ आए और आपने बहुत ही बारीकी से स्टार्टअप से रिलेटेड जो जानकारियां थी वो हमारे दर्शकों के बीच में रखी। आपने ये बताया कि स्टार्टअप होता क्या है, स्टार्टअप में अगर आप उसके बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो आपको क्या क्या ऐसे जो रिक्वायरमेंट्स है या प्री रिक्विजिट्स है जिसको कि आपको पूरा करना पड़ता है। इसके अलावे आपको फंडिंग अगर चाहिए तो आप फंडिंग कैसे ले सकते हैं, कब ले सकते हैं, और क्या क्या सुविधाएं आपको मिलती है अगर आप एक स्टार्टअप के रूप में काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर से ये सारी जानकारियां जो है हमारे दर्शकों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। और मैं दर्शकों को यहाँ कहना चाहती हूँ कि आप में से कोई भी अगर स्टार्टअप को लेकर के कोई जानकारी चाहता है तो वो रोहित से सोशल मीडिया जो जो प्लेटफॉर्म है उसमें फेसबुक है, और अन्य भी ऐसे जगह है, लिंक्डइन है, और बाकी ऐसे जगहों पे रोहित जो है वो मौजूद है। और आप जो है इनसे संपर्क करके जानकारी ले करके स्टार्टअप में आप इनसे अगर कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं या इनकी मदद चाहते हैं तो उसके लिए वो हमेशा जो है आपके लिए तैयार रहेंगे। मैं ऐसा उम्मीद रखती हूँ रोहित। जी, और डेफिनेटली अगर किसी को भी और कोई भी सपोर्ट की जरूरत हो तो डेफिनेटली बेहिचक। मैं एक चीज और जाते जाते बताना चाहूंगा कि हमारे पास लगभग 30 से 40 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी रजिस्टर करके दिया है। 30 से 40 ऐसी कंपनीज है, जस्ट बिकॉज कि ऐसे लोग आते हैं हमारे पास। ऐसे ही कुछ सेशन में बहुत लोग कन्वर्ट होते हैं कि मुझे कंपनी बनाना है, मेरे पास ये आइडिया है, मेरे सामने पिच करते हैं। तो बहुत सारे जो भी लीगल एड होता है, जो भी लीगल सहायता होती है उनकी, वो पूरा पूरा मैंने देता है। जो भी चालान का कॉस्ट होता है हमारे यहाँ, जो भी गवर्नमेंट फीस होती है वही चार्ज करता हूँ अपार्ट फ्रॉम फ्री ऑफ कॉस्ट। 30 से 40 कंपनी एज ऑन डेट मेरे यहाँ स्टार्टअप है जो कि अच्छा कर रही है।
जी। और वो और ये एग्रीकल्चर फील्ड से भी, बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर फील्ड से भी हैं और बहुत सारे लोग ऐप और वेबसाइट से रिलेटेड हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं। तो सब अच्छा कर रहे हैं। होपफुली आज ना कल वो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर बनेंगे और डेफिनेटली मुझे भी तो सर्व करेंगे ही। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आई है रोहित जी की तरफ से कि जो भी उनसे सहायता के लिए पहुंचेगा तो उसकी सहायता वो करेंगे और इस तरीके से एक तरीके से हम कह सकते हैं कि समाज की सेवा ही कर रहे हैं कि ऐसे उद्यमी जो कि पूरा कॉस्ट बेयर नहीं कर सकते हैं तो उनसे चालान का अमाउंट लेकर के, मतलब जो आपको फीस देनी पड़ती है, फी जो देनी पड़ती है भारत सरकार को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को या बाकी अथॉरिटीज को, तो फी का अमाउंट छोड़ करके बाकी वो उससे अपना जो वो आपसे प्रोफेशनल चार्जेस के नाम पर वहां पे अगर आप उनसे छोड़ने को कहेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे तो वो करेंगे ऐसा, और उन्होंने पहले भी ऐसा किया है। तो ये बहुत बड़ी जानकारी दी इन्होंने और ये बेहद सराहनीय कार्य में जुटे हुए हैं। और जैसा कि इन्होंने कहा कि ये कंपनियां अगर कामयाब हो जाती है तो आगे के दिन में जो है उनकी कामयाबी में इनका भी हाथ होगा, क्योंकि इन्होंने अगर उसको सही समय पे जो सहायता थी वो नहीं दी होती तो फिर उसका अस्तित्व ही नहीं होता, और अस्तित्व नहीं होता तो फिर सफलता की बात हम सोच भी नहीं सकते। तो इसके साथ साथ ही अब जो है हमारा कार्यक्रम जो है समापन की तरफ है और मैं पुनः रोहित को आभार कहूंगी और मैं ये उम्मीद रखूंगी कि अगली बार भी जब हमारी टीम इनसे संपर्क करेगी किसी ऐसे विषय पे कार्यक्रम के लिए तो ये उपस्थित होंगे। और मैं एक बार फिर से इनको कहती हूँ कि जो आज इन्होंने यहाँ पे एक मांग की है मुझसे कि एक एक सेशन ऐसा भी हो, एक टॉक ऐसा भी हो जिसमें हम कंपनी सेक्रेटरीशिप प्रोफेशन के बारे में बात करें, तो मैं बहुत जल्दी ही इस पे एक एपिसोड जो है वो लेकर के आपके सामने आऊंगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद रोहित कि आप आज यहाँ आए और आपने हमारे इस पटल पर इतनी सार्थक चर्चा की और हमारे जो तमाम दर्शक हैं यहाँ उन सबका ज्ञानवर्धन किया। तो मेरी तरफ से और मेरे इस पेज की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप जीवन में जो भी बनना चाहते हैं और जिस भी स्थान तक पहुंचना चाहते हैं तो सफलता की जो ऊंचाइयां हैं उस तक आप पहुंचे, सर्वोच्च शिखर तक पहुंचे। आप जो लोग हैं और अपने से जो जुड़े हुए लोग हैं इन सबका आप नाम रोशन करें। तो बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जोहार। नमस्कार मैम।